Hello students, today we are going to learn the third lecture of chapter number 2 in standard 9 for the foundation. Whatever we have discussed in first two lecture is about work. The name of the chapter is work, energy, power. As I said, there are three subtopics: work, energy and power. We combine all that three subtopics and make one chapter, and the name of it is work, energy, power. Whatever there in work, that we have already seen. Right now in this lecture we are going to talk about work and energy. Both are similar type of words. Why? How can you define energy? Can anyone tell me how you can define energy? Energy is nothing but the capacity to do work. See, if there are two persons and I have to decide who is more capable, then how can I measure that? One who has more capacity to do work is more capable according to me. So energy means nothing but the capacity to do work. If you are doing some work on object, means energy stores on that object. If any object possesses some energy, means it has capacity to do work. They are interrelated. आप वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, अगर उसके पास एनर्जी है मतलब वो वर्क कर सकता है. ठीक है, सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे रख रहा हूं, तो इसके पास वर्क करने की कुछ भी एबिलिटी नहीं है, कुछ भी कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर ही नहीं है. लेकिन अगर मैं यही ऑब्जेक्ट को कुछ वर्क करके, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर रहा हूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक रख दिया. नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी टास्क. नाउ इट हैज सम कैपेसिटी टू डू वर्क. व्हाई? बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क ऑन दैट. सो वेयर दिस वर्क वेंट? गीता जी में भी कहा है ना कि आप काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो. और साथ में ये भी लिखा है किसी ने कि भाई काम करते हैं, ठीक है, को ये भी होता है ना कि करते हैं वो किधर जाता नहीं है. ये सब लोग बोलते हैं आपने जो किया है वो कहीं नहीं जाता है, इसी जन्म में आपको वापस मिलता है. तो मैंने यहां से यहां तक कुछ वर्क किया, चलो मेरे को कुछ फल की आशा नहीं है, लेकिन मेरे को ये तो होगा ना कि जो मैंने वर्क किया वो गया कहाँ? आपने जो वर्क किया वो वर्क कन्वर्ट होके इसके अंदर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. अभी देखो, जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं तो ये नीचे की ओर आएगा, मतलब कि वो पूरा का पूरा एनर्जी वापस से दे देगा नीचे आके. ठीक है. So energy means nothing, energy means a capacity to do work. There are various types of energy like mechanical energy, nuclear energy, solar energy, sound energy, electrical energy, chemical energy, kinetic potential energy. Various kinds of energies are there. One by one we will discuss in brief how many types of the energy, and then after we are going to learn one work energy theorem, right? So first of all, let's see what is there in our module. First of all, energy is there. We often say that man is stronger than the other or has more energy than the other. Thus we compare the amount of work both can do. The person with more energy can do more work.
Now in bold letters there is the definition of energy. The capacity to do work is known as energy. Anything which can do work has energy. The energy possessed by object is measured in terms of capacity of doing work. The unit of energy is joule. See, वर्क का यूनिट क्या था? अब देखो, वर्क मीन्स क्या था? वर्क मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सही है. फोर्स का यूनिट था न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का था मीटर. न्यूटन को आप ये भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर. मीन्स ये आ गया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और आप इसको ये ना बोलते हुए आप इसको ये भी बोलते थे जूल. सो वर्क का यूनिट है जूल. वर्क बोलो या एनर्जी बोलो दोनों सेम ही है, इंटर रिलेटेड ही है दोनों. तो एनर्जी का यूनिट भी क्या है? एनर्जी का यूनिट भी है जूल. आप जूल भी बोल सकते हैं, आप न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं. ठीक है. 1 जूल का मतलब क्या होता है? देखो, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क. अगर आप 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसके अंदर 1 जूल की एनर्जी आएगी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can do. Energy is a scalar quantity, same like work. Energy is scalar, right? There are various types of energies. First is mechanical energy. The energy by the virtue of which a body can do some mechanical work directly is known as mechanical energy. ऐसी एनर्जी जिससे मैकेनिकल वर्क हो सके उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी. द एनर्जी रिलीज केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल एनर्जी. ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना, ठीक है. बहुत ब्रीफ में है, आपको सिर्फ आपको पता चले कि ऐसी ऐसी भी एनर्जी है, सिलेबस में रखा गया. इनमें से कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा. साउंड एनर्जी. द एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड इज नोन एज साउंड एनर्जी. Electrical energy. The energy of moving electrons in a conductor connected with a battery is known as electrical energy. हेलो, बैटरी कोई भी सेल है तो सेल क्या प्रोवाइड करता है? सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स लगता है आपके इलेक्ट्रॉन पे और वो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है. द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कनेक्टेड विथ अ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी में क्या है? The energy radiated by the sun is known as solar energy. आज सभी लोग अपने अपने घर की छत पे वो जो सोलार हीटर है वो लगा रहे हैं, तो वो सोलार एनर्जी का यूज करके आप कोई भी काम कर सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 न्यूक्ली ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्ली और हैवी न्यूक्ली ब्रेक्स इनटू 2 लाइट न्यूक्ली इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. आपको ये सारी चीजें 10th स्टैंडर्ड में शायद से आएगी. 10th साइंस के अंदर जो केमिकल पार्ट रहेगा आपका, केमिकल पोर्शन, उसके अंदर ये सारी प्रोसेस आती है कि भाई कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव रहते हैं. यूरेनियम, तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव है. तो वो यूरेनियम का क्या होता है? वो यूरेनियम टाइम के साथ कभी कभार वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है. जब भी ब्रेक होता है तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी का आप यूज करते हैं. जैसे कि उससे आप घर की बिजली बना सकते हैं और बाकी सारे काम के लिए भी वो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो न्यूक्लियर एनर्जी इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, राइट. काइनेटिक एनर्जी. सी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर 2 पार्ट है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करके मैकेनिकल एनर्जी बनती है, जिसमें से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी शायद से आपको मालूम होगा, 1/2 k इज इक्वल टू 1/2 mv²। हुआ क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन में मास, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका जो हाफ वैल्यू लोगे, वो हाफ वैल्यू इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। रीड द डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से कुछ काम कर सकता है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। Half of the product of the mass of a body and the square of its velocity is defined as the kinetic energy of the body. Ultimately, K is equal to 1/2 mv². See, as you know, what is momentum? Momentum. P means mass into velocity. यही इक्वेशन के अंदर, K के अंदर ही मैं क्या करता हूं, 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर, ऊपर नीचे में मास से मल्टीप्लाई करता हूं, मास से डिवाइड करता हूं, तो होगा क्या, ऊपर हो जाएगा m² v², नीचे हो जाएगा 2m। ये m² v² को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mv का पूरा स्क्वायर अपॉन 2m। mv मीन्स मोमेंटम, मतलब p² अपॉन 2m. So kinetic energy has another formula. One is this, K is equal to 1/2 mv². Another one is this, K is equal to p² upon 2m. Suppose in your data they are talking about mass and velocity and you want to find out its kinetic energy, means you have to apply your first formula, because in which mass is there, velocity is there. Suppose in any data they are talking about momentum and mass, then at that time you have to apply such kind of formula so that you can easily calculate kinetic energy, right? यही इक्वेशन में से ये भी कर सकते हैं, p² is equal to 2m into k. Ultimately p is what, p is under root 2mk, where k is kinetic energy. Some mass is given, energy is given, and you want to find out its momentum, so at that time this formula will be helpful to you. So ultimately there are three equations, k is equal to 1/2 mv², p is equal to under root 2mk, and k is equal to p² upon 2m. These three formulas are most important for today's lecture, right? So p is equal to under root 2mk, k is equal to p² by 2m, and k is equal to 1/2 mv². P is the linear momentum. Then after there is one theorem, which is theorem. Theorem is very easy. See, work energy theorem. होता क्या है इसके अंदर, वर्क एनर्जी थियरम में आपको ये तो मालूम है ना कि वर्क को क्या बोलते हैं, वर्क को बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को तो आप ये भी लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। हेलो, फोर्स की जगह पे मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन किया। सो अल्टीमेटली व्हाट इज वर्क, वर्क इज mass acceleration into d. As we know v² minus v02, v² minus v02 is equal to 2ad. यहां से मैं a डॉट d को सब्जेक्ट करता हूं तो आता क्या है, v² minus v02 divided by 2. I am putting the value of a into d in this equation. So what happened, work means what, m, a dot d means क्या, v² minus v02 divided by 2. If I multiply m with this bracket, what happened,
1/2 m v square minus 1/2 m v0 square. Here v is the final velocity of the object and v0 is the initial velocity of the object. If v is final velocity, then 1/2 mv square is denoted by final kinetic energy. 1/2 mv0 square is known as initial kinetic energy, means your work is nothing but the change in kinetic energy. K minus K0 is what? Delta K. So ultimately W is equal to what? Delta K. What is this W? This W is the work done by the net resultant force. आप जब ये फॉर्मूला यूज करें तब आप मेक श्योर करिए कि यहाँ पे जो वर्क है वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क है वो लेना है आपको, ना कि कोई एक दूसरे फोर्स से लेना है. डेल्टा के मींस क्या? काइनेटिक एनर्जी में जो हो रहा है वो चेंज आपको यहाँ पे लेना है. सो हियर देयर इज द वर्क एनर्जी थ्योरम. The work done by the force F, W is equal to F dot D, where D is displacement, but F is equal to M into A, so M into A into D. V square minus V0 square is equal to 2AD. AD को आप सब्जेक्ट करोगे तो W is equal to 1/2 MV square minus 1/2 MV0. मॉड्यूल में यहाँ पे स्क्वायर कर देना इक्वेशन 3 के अंदर. Here V0 and V are the speeds before and after the application of the force respectively. मतलब कि V है वो फाइनल वेलोसिटी है, V0 है वो इनिशियल वेलोसिटी है. The work done by the resultant force, ये जो work done है वो resultant का है. The work done by the resultant force on a body is equal to the change in its kinetic energy of the body. This statement is known as work energy theorem. बहुत simple theorem है. From equation 3, right hand side is the change in kinetic energy of the body. यहाँ पे kinetic energy का change है तो उसको आप बोल सकते हैं delta K. So W is equal to what? Delta K. This is the work energy theorem. See, according to work energy theorem, the work done by the net force on a particle is equal to the change in its what? Change in its kinetic energy. जो भी kinetic energy का change रहता है उसको आप work बोलते हैं. ठीक है? K0 and K are the initial and final kinetic energies, so W is equal to delta K. What is the unit? From equation 4 it is clear that the unit of kinetic energy is same as the unit of work. Kinetic energy का भी यूनिट क्या रहेगा? जूल ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का और वर्क का यूनिट तो सेम ही रहना है. If the speed of body is constant, its kinetic energy remains constant. Since the speed of a particle performing uniform circular motion is constant, its kinetic energy also remains constant throughout. Therefore work done is 0. क्या बोला गया है वो मैं आपको बता रहा हूं. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर भी नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कि आपका कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ये पाथ के अंदर घूम रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 1/2 mv0 स्क्वायर. मास तो वही है क्योंकि वही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और स्पीड भी वही की वही है क्योंकि स्पीड में भी चेंज नहीं हो रहा है. मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में V0 और V ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है. मतलब इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा. अगर आंसर सेम आ रहा है तो डेल्टा के क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो 0 हो जाएगा. सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा 0. इफ योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग if your object is performing uniform circular motion, means at that time work done is 0. ठीक है? Okay, fine. Therefore work done is 0. See, K is equal to 1/2 mv square. अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. आपको कहीं पे भी सिचुएशन दी गई होगी कि एक लाइटर बॉडी है, एक हेवियर बॉडी है,
तो लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि हेवियर बॉडी की ज्यादा होगी? तो आपको दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आपको mv²/2 दोनों का निकालना है। जिसका mv²/2 ज्यादा आया उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पे यही बोला गया है कि हायर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी, हायर द मास ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी। सो इसके अंदर कुछ समझने वाली बात नहीं, ये हम खुद ब खुद भी समझ सकते थे। देखो अभी सारी जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी एप्लीकेशन सिर्फ 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट इज k is equal to 1/2 mv², another one is k is equal to p²/2m, last one is p is equal to √2mk. So ultimately questions are very easy. One by one I am trying to solve you, but these all the applications you can solve in your homework too by your own self. ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाना पड़े, आप आसानी से भी समझ सकते हैं। W is equal to delta K. This is the fourth formula that will be helpful to solve these problems. So let us see with what velocity should a student of mass 60 kilogram run? Means mass is given 60 kilogram. What is the velocity that they are asking? We don't know about its velocity, but yes, kinetic energy should be 270 joule, so K should be 270 joule. So with what speed should a student run? So ultimately you have K is equal to 1/2 mv². K is given, 1/2 is 1/2, mass is given, so ultimately you can find the value of v². Once you find out what is v², by taking square root you can easily find out what is its speed. Hello, there is nothing hard in this question. What should be the velocity of a student of 40 किलोग्राम? अभी 60 की वजह से 40 किलोग्राम का स्टूडेंट आ गया है और काइनेटिक एनर्जी आपको 300 करनी है, तो बस काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास दिया है, तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं आता है तो ये कैलकुलेटर से भी सोल्व हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा मतलब सीधा फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप अपने हिसाब से जिधर भी दिखाई दे तब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर रूट आंसर आता है, तो 15 का स्क्वायर रूट आपको नहीं मालूम होगा तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। The kinetic energy of an object of 10 kilogram mass and moving with velocity of 25 meter per second is what? मास दिया है, वेलोसिटी दी है, so 1/2 mv²। अगर सब चीजें दी है तो आपको तो बस अप्लाई करना है। A mass of bus is given, मतलब मास दिया है। How much work is required to be done on it to make it move with a speed of 50 km/h? See, अभी आपके पास जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें पूछा गया कि वर्क कितना चाहिए, तो वर्क मीन्स क्या? डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स क्या? 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। Initially bus is at rest, so it has zero velocity, so kinetic energy initially is 0. 1/2 mass of bus is given 2000 kilogram. Speed is given, but it is in km/h. 50 km/h is there, so you have to convert kilometer into meter and r into second. So ultimately it is 1/2 into 2000 into 50. 1 kilometer means 1000 meter. 1 r means 3600 सेकेंड। इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। फिर जो आंसर आता है वो आंसर फिर 10⁵ या 10⁶ में ही आंसर आना है, क्योंकि आप देखो तो सही कितने जीरो है पीछे, और इसका भी वापस स्क्वायर करना है। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 1000, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई जितना होता है उतना करो, तो 2 5s और 2 18s, मतलब ये हो गया 250 डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया
1000 को आप बोल सकते हैं 10⁻3। ये हो गया 250, मतलब 25 का स्क्वायर 625, 0 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अगर नहीं आता है तो कर लेने का कैलकुलेटर से। 0 18 8 8 जार 6 8 8 जार 64, so 4 8 1 जार 8 8 plus 6 14, so it is 4 2 324। बस अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेटर लेके ये दोनों की वैल्यू निकाल दो, फिर जो भी आंसर आता है उसके पीछे 10⁻5 लगा दो, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है। सो बेस सेम, देन पावर विल बी एडेड। सो 10⁻5 में आपका आंसर आ सकता है। हो सकता है कि वो आगे पीछे पॉइंट करे तो 10⁻6 है तो 10⁻4 में भी आंसर आए, लेकिन होगा वो आपको लिखना हो, ठीक है। सी जस्ट कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। यहां पे जो वेलोसिटी दी है ना, वो डायरेक्टली नहीं दी है कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड है या तो 50 मीटर पर सेकेंड है, कुछ ऐसा डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वेक्टर फॉर्म के अंदर दिया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है 3i कैरेट प्लस 4j कैरेट, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ i कैरेट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैरेट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, so it is under root of 25, so it is 5. What is the magnitude of the velocity? It is 5. Mass is given 0.8 kilogram. Once you find out what is mass and what is velocity, you can easily find out what is its kinetic. That just by applying 1/2 mv square, you can easily get to your answer. So that's it. आप टाइप देखो, कभी कभार मास डायरेक्टली देते हैं, कभी कभार वेलोसिटी डायरेक्ट देते हैं। अभी वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर दे दी गई। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस है उनमें से आपको यही सिर्फ पता करना रहता है कि कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा, ठीक है। डेटा में से एक के बाद एक आप सारी वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करते जाओ कि क्या दिया है, मेरे को क्या लाना है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A bullet is fired into a huge wooden block. The bullet, while moving inside the block, loses half of its velocity when it travels 6 centimeter inside the block. How far then would it go inside the block? Resistive force is constant. See, जो भी सिचुएशन दी गई है उसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास है, सपोज दिस इज द वुड, ठीक है, ऐसा कुछ वुडन ब्लॉक आपके पास है। यहां पे आपके पास कोई गन है, कौन सी गन रखनी है? M416। ऐसी M416 नहीं रहती, ये पिस्तौल है हमारे पास। हमारा बेटा थूकता है, બેન કરી દીધું તો એ ઓલું કોરિયન વર્ઝન ને આ ગોતી ગોતીને લાવે। सपोज दिस इज द बुलेट, यहां से बुलेट फायर की गई है। इनिशियली व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट इज गिवन। बुलेट यहां से एंटर होगी, सपोज यहां पे उसकी स्पीड है v0, वो ब्लॉक के अंदर घुस गई और 6 सेंटीमीटर तक ट्रैवल करती है। आपकी बुलेट 6 सेंटीमीटर तक ट्रैवल करती है। जैसे ही वो बुलेट यहां पे पहुंचती है उसकी स्पीड आधी हो जाती है। अगर यहां पे v0 थी तो यहां पे उसकी स्पीड हो जाएगी v0/2। अभी भी उसके पास स्पीड तो है, मतलब अभी भी वो आगे तो जा सकती है। मालूम नहीं, शायद वो वुडन ब्लॉक क्रॉस भी कर ले, शायद ना भी करे, लेकिन आपको ये बोला गया है कि वो आगे कितना जाके स्टॉप हो जाएगी। तो सपोज कि अगर वो स्टॉप हो रही तो इतना आगे बढ़ेगी, वो कितने सेंटीमीटर है वो मालूम नहीं, सपोज कि वो x सेंटीमीटर है। यहां पे आके वो स्टॉप हो गई, मतलब v क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये इतने मीटर पर सेकेंड था, ये इतने मीटर पर सेकेंड था। स्टॉप हो क्यों रही है? आपकी
की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये ब्लॉक उस पे रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। हेलो, ये सामने की ओर फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। फोर्स यहां पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वेलोसिटी दी है, देखो मैं यहाँ पे पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। मुझे ए और बी तक का वर्क चाहिए, मतलब कि आई वॉन्ट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी का वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ए टू बी मीन्स डेल्टा के चाहिए। कब तक का? ए से लेके बी तक का। मतलब कि बी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से आप ए के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तब आपको वर्क मिल जाएगा। और वर्क को तो आप क्या बोलते हैं? एफ डॉट डी, मतलब एफ डी कोस थीटा भी बोलते हैं ना। फोर्स कब तक का? ए से बी तक का जो फोर्स है वो। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का? ए से बी तक का। कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा 180 डिग्री। फोर्स तो कांस्टेंट है, ए से बी के बीच जितना फोर्स लगा उतना ही फोर्स बी से सी तक लगेगा। तो फोर्स ऑफ ए बी नहीं लिख रहा हूं, वहां पे मैं सिर्फ एफ ही लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 6 सेंटीमीटर। cos 180 की वैल्यू होती है -1। बी के पास कौन सी वेलोसिटी है? काइनेटिक। बी के पास वेलोसिटी है v0/2, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा आएगा? 1/2 मास ऑफ द बुलेट। काइनेटिक एनर्जी है v0/2 उसका स्क्वायर -1/2 मास, इनिशियल वेलोसिटी इज v0 का स्क्वायर, राइट। सो अल्टीमेटली क्या होगा? -f इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 m, ये हो जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस v0 स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या होगा? 1/2 m माइनस 3v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। हेलो, 4 एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -f इंटू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? मालूम नहीं आंसर तक कहां से पहुंचे, तो इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एफ भी नहीं दिया है, मास भी नहीं दिया है। तो आप यही वर्क डन जो ए से बी तक का किया, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यहां भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी यहां भी मालूम है, तो आप यहां से यहां तक का भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज ले सकते हैं ना। सो अल्टीमेटली आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं बी से सी तक का। वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम बी टू सी। तो यहां पे क्या होगा? फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स यही डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट यहीं पे ही हो रहा है, तो फोर्स बी से सी तक का, डिस्प्लेसमेंट बी से सी तक का, cos 180 डिग्री ही होगा। वर्क को हम बोल सकते हैं एफ डी cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ? तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक होगी 0 में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्सट्रैक्ट करो, 1/2 m v0/2 का स्क्वायर निकालना होगा। cos 180 माइनस है और एफ बी सी को आप एफ ही बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स सेम है। आगे आ जाएगा -1, और ये डिस्टेंस कितना है? x सेंटीमीटर इज इक्वल टू -1/2 m v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको हम एक और स्टेप आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो -3m v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 8। हेलो, इसको हम नहीं बोलते, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। -f इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस। यहां से आप कहां तक पहुंचे? -f इंटू x सेंटीमीटर इज इक्वल टू -m v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 8।
तो ये आपका सेकंड नंबर का इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है। आपका जो आंसर है वो है ये x कितना है। अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x यू हैव टू इक्वेशंस। आप ये दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे ताकि x का आंसर आसानी से मिले? आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आसानी से नहीं आएगा। लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन बचा है कि यू कैन डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1। आप दो वाले इक्वेशन को एक वाले से डिवाइड कर देते हैं तो होगा क्या, -f इंटू एक्स सेंटीमीटर अपॉन -f इंटू 6 सेंटीमीटर। यहां पे है -mv02 डिवाइड बाई 8, यहां पे है -3mv02 डिवाइड बाई 8। mv02 बाई 8 mv02 बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। So ultimately x centimeter is what? 6 centimeter divided by 3. So ultimately x is equal to 2, मतलब कि 2 centimeter is your answer. हेलो, आप x का यूनिट नहीं बोलते, x का कौन सा यूनिट आएगा वो तो आपको बाद में मालूम चलेगा, तो यहाँ पे आपको x ही रखना चाहिए। तो ये आंसर क्या आएगा, x is equal to 6 सेमी डिवाइड by 3, तो x is equal to 2 centimeter. So ultimately your answer is 2 centimeter. They are saying that how far then would it go inside the block? आगे कितने की ओर जाएगी, तो क्या आगे 2 सेंटीमीटर तक जाएगी। आप यही सॉल्यूशन ये क्वेश्चन के लिए लिख लो, सॉल्व प्रॉब्लम 38 के लिए आप यही सॉल्यूशन लिख ले, समझ ले ये आसान है, मैंने क्लासरूम में इन्हीं से सिखाया है, तो आप ये आसानी से याद रख पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 है, इतना डिस्टेंस तय करने के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हाफ हुई, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले वो लोग कि इसकी वेलोसिटी v0/3 हो गई, मतलब कि वेलोसिटी का थर्ड पार्ट हो गया, फिर वो आगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कभी कभार क्या आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, यहाँ x सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक वो पहुंची और ये डिस्टेंस दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 6 सेमी है, वेलोसिटी हाफ हो रही, तो पीछे वाला 2 सेमी आंसर आया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा कि आगे वाले में कौन सा डिस्टेंस है वो नहीं मालूम है, वेलोसिटी हाफ हो रही है और पीछे वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो आगे वाला कितना होगा 6 सेंटीमीटर। आप ऐसा कुछ रटना मत, आप अपने हिसाब से इतना सॉल्यूशन निकालना हर बार, ठीक है। जो मैंने बोला देखो वैसे ही सारे क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। A bullet is fired into a huge wooden block. The bullet while moving inside the block loses 1/3 of its velocity. This time velocity loses by 1/3 of its initial velocity and distance is how far then would it go inside the block? Resistive force is constant. Same kind of situation, just data changes. ये क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी हाफ हो रही है, आगे वाला डिस्टेंस x है, पीछे वाला डिस्टेंस 2 है, तो आगे वाला डिस्टेंस कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। सेम टू सेम यही सिचुएशन से आपको करना है। लुक एट दिस, if the kinetic energy of a body becomes 4 times the initial value, then the new momentum will be what? This time they are talking about momentum. मोमेंटम के बारे में पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये लेना होगा p²/2m। फाइनल क्या हो रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम, ये k में से 4k हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल ये बाद में सपोज ये मोमेंटम p डैश है, मालूम नहीं कितना है,
हेलो, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो आपका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, ये वाले फॉर्मूला से भी बेहतर है ये वाला फॉर्मूला, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। हेलो, नया पी डैश क्या आ जाएगा, पी डैश का पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के है ना, पी स्क्वेयर नहीं है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है मतलब कि 2m, ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 2 अंडर रूट 2m के। सो नया P डैश क्या आएगा, नया P डैश आएगा पुराने वाले P से डबल। सो P डैश का आंसर क्या आएगा, P डैश का आंसर 2 टाइम्स P। सो इट बिकम्स ट्वाइस टू इट्स इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे वही k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m से ही किया है, लेकिन ये सारी चीजें करने से बेहतर है जो मैंने आपको सिखाया वो करो। ये भी मैं सिखा रहा हूँ, देखो अभी थोड़ी देर के बाद वो भी सिखा रहा हूँ। ये देखो वापस से वो वेक्टर फॉर्म वाला और ये मास वाला आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन ही है। वेलोसिटी जस्ट 1/2 mv² करना है। ये देखो, two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energies. If p1 and p2 are their respective momenta, what is the ratio of p1 is to p2? Two bodies m1 and m2 have equal kinetic energy. See, this is body m1, this is body m2. दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी k है, इसका काइनेटिक एनर्जी k है। इसका मोमेंटम सपोज p1 है, इसका मोमेंटम सपोज p2 है। तो आपको यह बताना है कि p1 इज टू p2 का आंसर क्या आता है। तो आपके पास p की कोई फॉर्मूला है, यस, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। ये वाली फॉर्मूला से आप ये लिख सकते हैं ना कि p1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2m1 इंटू पहले वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो तो k है, अपॉन P2 क्या होगा, अंडर रूट 2m2, उसकी काइनेटिक एनर्जी के। P1 अपॉन P2 ही फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट के चला जाएगा, आंसर आएगा अंडर रूट m1 अपॉन m2। C इज योर आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन ही लिख लें आप, CTP 46। अटेम्प्ट करते वक्त नोट पेन साथ में रहना बहुत जरूरी है। मेरे सॉल्व करने तक आप वेट मत करो, आप खुद ब खुद ट्राई कर दो। अ लाइट एंड अ हेवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का सेम है। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, सी मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन है आपके पास, यस, k इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वेयर अपॉन 2m। पहली बॉडी बोलो या दूसरी बॉडी बोलो, दोनों के लिए मोमेंटम सेम है। अगर दोनों के लिए मोमेंटम सेम है तो k का रिलेशन m के साथ कैसे होगा, k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m होगा। p तो दोनों का सेम है, मतलब कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब हेवियर बॉडी के पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी, लाइटर बॉडी के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, द लाइटर बॉडी हैज। हेलो, सो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। If the kinetic energy of a particle is doubled, then its momentum will be what? P is equal to अंडर रूट 2m, k is double, मतलब k अभी 2k हो चुका है, तो ये 2 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा ना, रूट 2 इंटू रूट 2m के। तो ये तो पुराना वाला p था, तो नया p डैश क्या आया, नया p डैश आया आपका रूट 2m के। सो increases root 2 times. This is your answer. आप इसमें मत पढ़ना
कि ये सारी चीजें क्या है। देखो मैं आपको एक बार ये भी सिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने वो नहीं बताया। आप सपोज कि ये रिलेशन यूज कर रहे हैं k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। आपको क्या पूछा गया है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल एक ही है, मतलब दोनों का मास सेम रहेगा। मास सेम रहेगा मतलब कि k का रिलेशन पी स्क्वेयर के ऊपर कैसे है, k प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर। मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2 और इनिशियल काइनेटिक, आप ये भी बोल सकते हैं ना कि k2 प्रोपोर्शनल टू p2 स्क्वेयर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालो, प्रोपोर्शनलिटी निकालो तो आपको कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सपोज कि वो c है, सपोज c इंटू p2 स्क्वेयर। आप से ये भी बोल सकते हैं कि k1 प्रोपोर्शनल टू p1 स्क्वेयर, और k1 का आंसर निकालो तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा c p1 स्क्वेयर। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मतलब कि k2 अपॉन k1 कर दो, तो आंसर क्या आएगा c इंटू p2 स्क्वेयर अपॉन c इंटू p1 स्क्वेयर। c तो वैसे भी कैंसिल होना है, आप ऐसा मत करो, आप डायरेक्ट ये भी यहां से ही लिख सकते हैं। k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वेयर है, k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वेयर, तो आपको सीधा यही लिखना है k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू p2 स्क्वेयर अपॉन p1 स्क्वेयर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, तो k2 का आंसर आया 2k1 अपॉन k1 p2 स्क्वेयर अपॉन p1 स्क्वेयर। k1 will be cancel out. So what is p2 square? p2 square is equal to 2p1 square. So what is p2? p2 is equal to रूट 2 p1। तो आप यहां से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे वो तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। Two bodies of masses m and 2m have same momentum. देखो k is equal to p square upon 2m. This is the relation and momentum is same. If momentum is same, then k proportional to 1 upon m. If k proportional to 1 upon m means k2 upon k1 is equal to 1 upon m2 upon 1 upon m1. It means k2 upon k1 is equal to m1 upon m2. Now what they are saying, find out the ratio of k1 is to k2, मतलब इसका उल्टा कर दो। So k1 upon k2 is what? k1 upon k2 is m2 upon m1, but masses are given। पहला मास है m, दूसरा मास है 2m, so 2m upon m, so answer is 2:1। B। हेलो, मैं ये इतनी स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि इतनी स्पीड से ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मेरे को पूरा का पूरा एनर्जी एक ही लेक्चर के अंदर ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर बाकी कुछ है ही नहीं। वर्क के लिए हमने 2 लेक्चर किए, लेकिन एनर्जी मेरे को सिंगल लेक्चर में निपटा देना है, क्योंकि बहुत आसान है। Two masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of the magnitude of the respective linear momentum is what? See, इसके लिए आप वो रिलेशन यूज करो ना, P इज इक्वल टू √2mk। पहला बॉडी है तो P1 इज इक्वल टू 2m1k1। दूसरा बॉडी है तो उसके लिए P2 इज इक्वल टू 2m2k2। ये दोनों का रेशियो ले लो, सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू √2m1k1 अपॉन √2m2k2। मोमेंटम दोनों सेम दिया है ना, नहीं मोमेंटम तो पूछा है, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मोमेंटम इज व्हाट, मतलब P1 अपॉन P2 निकालना है, तो √2 कैंसल, तो आएगा √m1 अपॉन √m2, √k1 अपॉन √k2, लेकिन काइनेटिक एनर्जीज आर सेम, तो k1 k2 नहीं है, वो सिर्फ k ही है, इक्वल है, तो ये दोनों तो निकल जाएगा। तो P1 अपॉन P2 का आंसर क्या आएगा, √m1 अपॉन √m2। पहला मास क्या है 1 ग्राम, दूसरे वाले का मास क्या है 9 ग्राम। 1 ग्राम का स्क्वायर रूट 1, 9 ग्राम का स्क्वायर रूट 3,
gram gram will be cancel out, so 1:3 is your answer. सी नीट 1993 में ये क्वेश्चन आया. नीट एग्जाम होता है 12th के बाद. आप अभी 9th में हो, फिर भी आप इतने कैपेबल हो सके कि ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यही ब्यूटी है फाउंडेशन रखने की, कि आप कम उम्र में इतने इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं कि जब आप 11th 12th साइंस में आएंगे तब आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी डिपेंड कर सकता है. आंसर सी इज द राइट आंसर. A body of mass 2 kg is dropped from a height of 1 meter. Its kinetic energy as it reaches the ground is what? See, ये क्वेश्चन अच्छा है. सिचुएशन समझो. 2 मीटर की हाइट, यहां से एक ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का ड्रॉप हो रहा है. इनिशियली वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड. ये जो हाइट दी गई है वो 2 मीटर दी गई है. आपको पूछा ये है कि जब वो ग्राउंड पे आएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो ग्राउंड पे सपोज की काइनेटिक एनर्जी के है, तो के का आंसर है 1/2. जो ऑब्जेक्ट आता है उसका मास, और यहां पहुंचते वक्त जो वेलोसिटी है वो लेनी पड़ेगी. आपका इनिशियल वेलोसिटी v00 है, लेकिन सपोज यहां पहुंचने के बाद वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि यह स्पीड फाइंड आउट करनी है v. तो आप देखो, जो भी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है. ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो कांस्टेंट होता है. इफ acceleration is constant, then you can use any formula from constant accelerated type of motion. There are mainly 3 formulas. One is d is equal to, one is d is equal to v0 plus 1/2 at square, and the third one is v square minus v. Here initial velocity is given, final velocity you want to find out, and distance is given. So I am applying v square minus v0 square is equal to 2ad. फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. 2 एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस लेना होगा. कितना लेना होगा? -9.8. डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा -2. सो अल्टीमेटली v स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2 into 2 4, minus minus plus 4 into 9.8. दिस इज योर आंसर v स्क्वायर. v निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 1/2 mv स्क्वायर में v स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मालूम होगी तो चलेगा. तो k निकालो. 1/2 मास है 1 किलोग्राम. v स्क्वायर का आंसर आया 4 into 9.8. सो 2 2s are 4 एंड 9.2 का डबल होगा 19.6 मीटर. सॉरी, मीटर थोड़ी होगा, जूल आएगा ना आंसर. तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या रहेगा? जूल. So this is the answer. और वैसे भी देखो 90, अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो किलोग्राम में थोड़ी आंसर होगा, मीटर में थोड़ी आंसर होगा, न्यूटन में थोड़ी आंसर होगा. यही आंसर होना था, खाली फोकस इतना सोचा. लेकिन फिर भी अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा, वो आपको मालूम नहीं पड़ सकता है. कभी कभार लोग क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh जितनी, वो mgh ग्राउंड पे आता है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाता है? 1/2 mv स्क्वायर में. मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया? काइनेटिक एनर्जी में. तो आप कभी कभार ये भी कर सकते कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. मास मास विल बी कैंसल आउट, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. तो आप यहां से भी v स्क्वायर निकाल सकते हैं. यही आंसर आना है. आपके मॉड्यूल में ये तरीका दिया है, देखो जो हिंट दी गई है ना, उसमें ये किया है mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. आपको ये अच्छा लगे तो ये रखना, आपको ये अच्छा लगे तो ये रखना, लेकिन दोनों लिख लेना साथ में, फिर आप जो चाहे जिससे चाहे आंसर ला सकते हैं.
व्हेन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज डबल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, खुद ब खुद कर लेना. फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच हैज 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ. काइनेटिक एनर्जी दिया है, स्पीड दी है, मास पूछा है, k इज इक्वल टू 1/2 mv². सिंपल सा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम. देखो मास ग्राम में दिया है, गलती से भी आप ये कन्वर्ट करना मत भूलना, इसको बोलते हैं 0.2 किलोग्राम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जूल में है. तो जूल क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसका आंसर जूल है, मतलब कि मीटर तो लाना ही होगा, किलोग्राम तो लाना ही होगा, कोई भी क्वांटिटी होगी उसमें से. यहाँ पे ग्राम दिया है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा उसको. फिर क्वेश्चन इजी है, मास दिया है, एनर्जी दी है, तो आप स्पीड तो निकाल ही सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/2 mv² से. मास 25 ग्राम है, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. मोमेंटम दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m. सो p मोमेंटम दिया है, मास भी दिया है, दोनों दिया है, तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये सारा मत करना भैया, आप सिर्फ इतना ही कर देना, k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, मतलब कि 0.40 का स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 0.025. कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकाल देना. ठीक है. A mass of a ball A is double than the mass of the ball B. The ball A moves half the speed of the ball B. सिचुएशन समझो आप, दो बॉल आपको दिए गए हैं A एंड B. A वाले का मास कितना है, वो बोल रहे हैं कि B वाले के मास से डबल है. सो मास ऑफ A इज डबल देन ऑफ मास ऑफ B. सो अल्टीमेटली यहां से आप ये लिख सकते हैं ना कि मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इज इक्वल टू 2/1. साथ साथ में वेलोसिटी का रिलेशन भी दिया है कि A की वेलोसिटी B से आधी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज हाफ देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ B. सो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A अपॉन वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/2. आपको पूछा ये गया है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताए मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड इज व्हाट, 1/2 ma² अपॉन 1/2 mb², mv². 1/2 will be cancel out. ma upon mb, ma upon mb is 2:1. va upon vb is 1/2, so it is 1/2 का स्क्वायर. So it is 1/4, so answer is 1/2. 1/2 आंसर आएगा आपका. हेलो, मैं कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इसीलिए यहाँ पे ही करते जा रहा हूं. आप मेरा सॉल्यूशन भी मत लिखो, आप अपने हिसाब से 3 फॉर्मूला में से कैसे भी करके आंसर तक पहुंचे. ठीक है. When the speed of particle is double, the ratio of kinetic energy to its momentum is what? देखो स्पीड बढ़ा दी गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv². स्टार्टिंग में ये होना है इनिशियली, फाइनल में स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या रहना है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. अभी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 m. वेलोसिटी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, तो उसका स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू 1/2 mv². फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी. फाइनल मोमेंटम कितना आया, m, वेलोसिटी हो गई डबल, सो आंसर इज 2 mv. सो फाइनल मोमेंटम कितना आया, 2 टाइम्स देन दैट ऑफ द इनिशियल मोमेंटम.
आपको पूछा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल मोमेंटम का रेशियो, मतलब के एफ अपॉन पी एफ का आंसर पूछा है, बराबर है। के एफ अपॉन पी एफ का आंसर पूछा है आपको। क्या पूछा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज डबल द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इट्स मोमेंटम इज व्हाट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये आएगी ना 1/2 m इंटू 2v का स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 2mv आएगा कि नहीं आएगा, हेलो। सो क्या हो जाएगा, सॉरी एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूँ कि क्या है। देखो यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन हमने क्यों किया, देखो आपको ये पूछा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डबल द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इट्स मोमेंटम इज व्हाट। अगर यहां से देखा जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये आएगी ना 4 इंटू 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी डबल हो गई। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम तो आपका यही आना है, क्या आना है, फाइनल मोमेंटम आपका आना है 4 mv। हेलो, when the speed of particle is double the ratio of its kinetic energy to its momentum। ठीक, पहले रेशियो क्या था, देखो पहले रेशियो क्या था, काइनेटिक एनर्जी का और इनिशियल मोमेंटम का। यहाँ पे रेशियो क्या था, यहाँ पे रेशियो था 1/2 mv स्क्वायर अपॉन mv, m कैंसल, v कैंसल, सो आंसर आया v/2। स्टार्टिंग में ये रेशियो था। अब रेशियो क्या होगा, तो अब रेशियो देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मोमेंटम फाइनल, तो ये क्या हो गया 2mv स्क्वायर अपॉन 4mv, mm कैंसल, v कैंसल, 2 2 जार 4, आंसर आया v/2। हेलो, v/2 ही आया ना, ये हो गया 2mv स्क्वायर, ये हो गया 4mv, यस, तो रिमेन्स द सेम, यही आंसर आना चाहिए। 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर m इंटू v, mm कैंसल, v कैंसल, आंसर आया v/2। यहाँ पे क्या हुआ 2mv स्क्वायर 4, हाँ ये मैंने गलत लिखा ना, मोमेंटम कितना है, मोमेंटम में सिर्फ वेलोसिटी डबल हो रही है ना, तो अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो फाइनल मोमेंटम 2mv आएगा। अगर फाइनल मोमेंटम 2mv आएगा, माफ करना दोस्तों, मैं एक बार वापिस से, ये पूरा गड़बड़ हो चुका है तो मैं अच्छे से एक बार समझा रहा हूं आपको। आप देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 1/2 m इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल रेशियो क्या था, इनिशियल रेशियो था 1/2 mvi स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू vi, ये इनिशियल रेशियो था। अभी क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है 1/2 m, फाइनल में क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, फाइनल स्पीड 2 टाइम्स इनिशियल स्पीड की जितनी हो चुकी है, तो ये हो गया 4 इंटू 1/2 mvi स्क्वायर। इसको तो आप ये बोल सकते हैं ना 4 इंटू के आई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 4 इंटू के आई। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m, स्पीड हो गई डबल, मतलब कि 2 m इंटू वी आई, मतलब कि फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, इनिशियल वाले मोमेंटम से डबल हुआ। तो स्टार्टिंग में ये रेशियो था के आई अपॉन पी आई, अभी क्या होगा के एफ अपॉन पी एफ क्या होगा, के एफ होगा 4 के आई, पी एफ होगा 2 पी आई, मतलब कि आंसर आया 2 के आई अपॉन पी आई। मतलब कि अभी का जो रेशियो है वो पहले वाले जो रेशियो था उससे डबल होगा, सो आंसर इज गेट्स डबल। सॉरी थोड़ी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एनर्जी को डिवाइड किया मोमेंटम, तो थोड़ा बहुत समझने लायक था, देख लेना आप एक बार।
A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to its velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows what? देखो यहां पे हुआ क्या वो देखो आपके पास कोई पार्टिकल है जिस पे F फोर्स लग रहा है, फोर्स इज F। वो फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर में जा रही है। अगर वेलोसिटी फोर्स के मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के परपेंडिकुलर में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे ये बोला है कि F इज परपेंडिकुलर टू, ये मैंने मैथमेटिकली लिखा है, परपेंडिकुलर ही लिखा है लेकिन ये मैथमेटिकल वे है। ऐसा कर दो ना मैं ऐसा, परपेंडिकुलर टू V, F इज परपेंडिकुलर टू V। इससे आपको समझना क्या है, इससे समझना ये है कि F इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर F और D परपेंडिकुलर है तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ डी कॉस थीटा, मतलब कि एफ डी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है, जब आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूम रहा हो, तभी आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर से स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड सेम है, इसकी वेलोसिटी सेम है, वो नहीं बोल सकते। तो अगर स्पीड सेम है तो थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन में देखो ऑप्शन ये था कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होगी, मोशन होगी सर्कुलर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कहां से कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट फोर्स भी नहीं है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो ऑलवेज फोर्स सेंट्रीपिटल रहेगा। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, की डायरेक्शन चेंज होती है मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो आंसर ए इज राइट। JEE 2004 में थोड़ा ट्रिकी थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, बहुत से लोग वेलोसिटी कांस्टेंट लिख के आ चुके थे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। A particle of mass is given, velocity is given, work done by the force of gravity during the time the particle goes up. पार्टिकल जब तक ऊपर जाएगा तब तक ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क होगा। सिचुएशन समझ लो आप, आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तब उसका इनिशियल स्पीड था, कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड vi इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वो ऊपर चला गया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया कि यहां जाके उसकी स्पीड खाली हो चुकी है, 4 मीटर पर सेकेंड। मास दिया है 100 ग्राम, मास इज 0.1 किलोग्राम। यहां पे भी मास तो वही होगा, मास इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। वर्क डन पूछा है, वर्क डन ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 1/2 इंटू मास। इनिशियली मास इज 0.1 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड इज 5 का स्क्वायर, so ultimately it is minus 1/2 into 0.1 into 25.
हेलो 25, 5 का स्क्वायर 25 कर देना, फिर जो वो इतने जूल, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा हैंग हो चुका है, मैं वापस से करता हूं एक बार, आप इतना याद रखना। ठीक है, दो मिनट। हाँ भैया, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूं। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, जो भी आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि वो सारा मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देख लो आप। A bullet of mass 10 kg leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second, strikes the earth at the same speed, same level with a velocity of 500 meter per second. आपके पास एक बुलेट थी, बुलेट मतलब वो गाड़ी बुलेट नहीं, गन में से जो बुलेट निकलती है वो बुलेट का इनिशियल स्पीड आपको दिया गया है। इनिशियल स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना 1/2 इंटू एम इंटू वी आई का स्क्वायर। आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी 1/2 इंटू मास इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर। मास कितना है बुलेट का? 10 kg की बुलेट है। ये बुलेट नहीं है, बुलेटा होना चाहिए, क्योंकि 10 किलोग्राम की थोड़ी बुलेट होती है कभी। लेकिन ठीक है, आपको जो आंसर चाहिए ना वो क्या चाहिए? वर्क डन निकालना है, लेकिन किलो जूल के अंदर निकालना है। तो बस W इज इक्वल टू करना क्या है? डेल्टा के। डेल्टा के मीन्स 1/2, मास है 10 किलोग्राम, फाइनल स्पीड है 500 का स्क्वायर माइनस 1/2, मास है 10 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड है 1000 का स्क्वायर। तो होगा क्या? 1/2 इंटू 10 कॉमन निकलेगा, 500 का स्क्वायर 25 इंटू 40 माइनस 1000 का स्क्वायर, ये हो चुका, ये हो गया 2.5 लाख, ये हो गया 10 लाख। 10 लाख में से 2.5 लाख जाएगा तो आंसर आएगा माइनस के अंदर 7.5 लाख। अगर आंसर माइनस 7.5 लाख है तो 2 5 are 10, 5 इंटू 75 करोगे 75 5 are 375, सो माइनस 375, फिर 4 जीरो और लगाने हैं आपको। ये आंसर आएगा जूल के अंदर। किलो जूल चाहिए तो और 3 जीरो निकाल दो पीछे से, तो माइनस 3750 किलो जूल, दैट इज योर आंसर। हेलो 3750। नीट एग्जाम है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इतना स्पीडी कामकाज किया यहाँ पे। ठीक है, an electron is moving in an orbit of 10 into 10 raised to minus 10 meter radius. Its mass is given and period time is given. What should be its kinetic energy as the classical physics? See, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूरा सेंटर में आना चाहिए। गोल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 31 किलोग्राम। ये जो रेडियस है वो बताई गई है, रेडियस है 10 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 10 मीटर। आपको पूछा है कि एक टाइम पीरियड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, व्हाट शुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा गया है आपको।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। 1/2 मास तो दिया है ना 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v नहीं मालूम है कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम दिया है वो 1 टाइम पीरियड दिया है, 1 टाइम पीरियड, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 1 टाइम पीरियड तक का डिस्प्लेसमेंट। एक टाइम पीरियड तक का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको लेना होगा। तो एक टाइम पीरियड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2πr जितना। हलो सर्कल बन रहा है, सर्कल का पेरीफेरी क्या होगा, 2πr, सर्क्यूमफरेंस होगा 2πr। टाइम पीरियड कितना दिया है, 10⁻⁻6। सो आंसर आएगा 2π, रेडियस की जगह पे 10⁻⁻10, नीचे आया 10⁻⁻6, तो आंसर आएगा 2π इंटू 10⁻⁻4। इतना वेलोसिटी आया। 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v² मतलब कि 2π इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर करना है। तो 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 2π का स्क्वायर होगा 4π², और 10⁻⁻4 का स्क्वायर होगा 10⁻⁸। हेलो, तो -31 -8 मतलब 10⁻⁻39, 2 2s are 4, 9.1 into 2 it is 18.2 π²। ऐसा कुछ आंसर आएगा। पाई की वैल्यू भी उन लोगों ने डिनोट कर दी है, पाई की वैल्यू भी रख दी है। पाई का आंसर है 3.14। आप ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। फिर जो आंसर आता है उतने जूल आंसर आएगा। आप ये सॉल्यूशन किधर लिख लेना, ठीक है। होमवर्क, सॉरी थोड़ा लेक्चर 5-10 मिनट का ज्यादा हो गया होगा शायद से, पर पूरा एनर्जी अभी खत्म, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जय हिंद, जय भारत, अस्तु, थैंक यू।